आज हम लोग सॉयल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 9 है। देखिए लिखा गया सॉयल रिसोर्स। अच्छा, सॉयल अपने आप में रिसोर्स है, इसलिए लिखा गया सॉयल रिसोर्स। आई थिंक यू नो वेरी वेल that all the things which fulfill our need is called resource. Soil also fulfill our need, so soil is also called resource. What is soil you see here? Soil is the thin layer of loose mixture. Soil वास्तव में लूज मिक्सचर का एक थिन लेयर होता है। ये किससे बनता है? स्मॉल रॉक पार्टिकल से और रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सॉइल में, और यह स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होता है। यानी रॉक के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और जो रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनसे मिलकर के सॉइल बनती है। नाउ यू सी कांस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल में क्या पाया जाता है और क्या उसके गुण होते हैं, क्या उसकी क्वालिटी होती है। अबाउट इट यू हैव टू नो। सॉइल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक, मतलब सॉइल पेरेंट रॉक से बनी होती है। रॉक, जिस रॉक से सॉइल बनती है उसे उस सॉइल का पेरेंट रॉक कहा जाता है। Therefore, all the qualities which are present in parent rocks transfer into the soil. इसलिए कहा जाता है कि पेरेंट रॉक की जो क्वालिटी होती है वही क्वालिटी सॉइल में होती है, प्रेजेंट होती है। सिंपल सी बात है, जो क्वालिटी पेरेंट की होती है वह क्वालिटी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। वही बात यहाँ पर भी है, पेरेंट रॉक की अपनी जो क्वालिटी होती है वह सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाती है। नाउ यू सी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का उपजाऊपन, सॉइल फर्टिलिटी यू हैव टू सी। फर्टाइल सॉइल हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट कंटेन्स मिक्सचर, यानी जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें इट कंटेन्स मॉइस्चर, इट कंटेन्स मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर होता है। सफिशिएंट डेप्थ, सॉइल की एक पर्याप्त गहराई भी होती है। एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। एंड इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाते हैं। एक फर्टाइल सॉइल की यह क्वालिटी है जो आपने देख लिया। नाउ यू हैव टू सी दैट टाइप्स ऑफ सॉइल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। आई वांट टू टेल यू बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। नंबर 1, alluvial soil. Number 2, black soil. Number 3, red soil. Number 4, laterite soil. Come at first we see the areas where these soils are found. Through map you try to understand. At first you see alluvial soil. You can see here. This is alluvial soil. You see color. This is present here. If all these areas are present, आप ये जान लें, it means alluvial soil is found basically in Ganga Brahmaputra plain. It is also known as Indo-Gangetic plain. It is also known as northern plain. एंड अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. Some other states are also under it, means some part of Rajasthan, some part of Gujarat, and coastal region of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu also. These are places of soil, alluvial soil. At second level you see black soil. Color you can see here, black soil, it is here. Mean black soil is found basically in Deccan Plateau. In Deccan Plateau it is found
And when we talk about states, so some part of Madhya Pradesh, some part of and maximum part of Maharashtra, some part of Andhra Pradesh, it is found. And third, red soil. You see red soil color, you can see. It is red soil. It is the area of red soil. Here also some portions are found red soil. When you talk about state, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, some part of Tamil Nadu, some part of Kerala, all these states, and some northeastern part of India is also this soil is found here. And at fourth level, we have to talk about laterite soil. You can see color. Laterite soil is very limited, such as you can see here in northeastern India, this area, and this area, laterite soil you can found. So this was the area of all those four soils. Now you see about them one by one in detail. At first you see alluvial soil, which is number one. Alluvial soils are formed by the sediments brought down by rivers. यानी alluvial soil जो बनती है वह रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट बहाकर लाया जाता है उसके जमाव से बनती है. And alluvial soil is known riverine soil. इसे riverine soil भी कहते हैं because it is found in the river basin. It is found in the river basin, so it is also known as riverine soil. It's a mixture of sand, clay and silt. ध्यान दीजिएगा, alluvial soil में sand, clay, silt इनका मिक्सचर होता है और फिर से कहा जाता है loam. It is most fertile soil. You should know about it. It is a most fertile soil. Some other points are also about it on the basis of its age. इनके एज के आधार पर, alluvial soil के एज के आधार पर, alluvial soil is divided into two parts. Number one, Bangar. Number two, Khadar. What is Bangar soil? What is Bangar alluvial soil? It is older. Older alluvial soil is called Bangar and newer alluvial soil is called Khadar. ये नई soil होती है, ये पुरानी होती है और दोनों मिलाकर के ये alluvial soil है. एक पॉइंट आपको यहाँ और जानना है कि खादर इज मोर फर्टाइल देन बागर. खादर जो है बागर से ज़्यादा फर्टाइल होती है बिकॉज न्यू लेयर आर डिपॉजिटेड ईयर आफ्टर ईयर. क्योंकि हर साल नया नया लेयर सेडिमेंट का जमा कर दिया जाता है, इसीलिए यह ज़्यादा फर्टाइल होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ alluvial soil. इनकी विशेषता क्या होती है? नंबर वन, यू सी इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर. रिवर के डिपोजिशन से यह सॉइल बनती है. सेकंड पॉइंट है, सॉइल पार्टिकल्स आर लार्ज एंड नॉन यूनिफॉर्म. इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे. इट इज़ लाइट एंड पोरस. ये सॉइल हल्की होती है और इसमें होल होते हैं. इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ऑलरेडी यू हैव रेड हिम, एंड इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. इसमें नाइट्रोजन की और ह्यूमस की कमी होती है, डेफिशिएंट होती है. Now once again you see where this soil is found. When you talk about states, Punjab, Haryana, UP, Bihar, West Bengal, as already through map I have told you. Now you see number two, black soil. Black soil is dark. ये डार्क होती है in color, so it's called black soil.
इट इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन बराबर आता है। इट इज आल्सो कॉल्ड लावा सॉइल, इस पर भी आपका ध्यान रहे, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय लावा, क्योंकि यह लावा के जमाव से बनती है। ब्लैक सॉइल इसलिए इसको लावा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज मोस्ट सुटेबल, इट इज ए मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए यह मोस्ट सुटेबल सॉइल है, सो इट इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। नाउ यू सी व्हाट इज कैरेक्टर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, इसकी विशेषता क्या है? तो नंबर 1 यू सी इट इज ब्लैक इन कलर एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लावा, ये लावा रॉक से बनती है इसलिए काले रंग की होती है। इट हैज हाई क्वांटिटीज ऑफ लाइम, इसमें बड़ी मात्रा में लाइम होता है, चूना लाइम, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ऑलरेडी यू हैव रेड, सुगर केन, ज्वार, wheat. All other crops are also produced such as sugarcane, jowar and wheat. But basically it is more suitable for cotton production. Therefore, black soil is called a productive soil. Number 4 you see, number 4 is it is very clay soil. ये बहुत clay soil है and this soil expands when wet, ये सॉइल फैल जाती है बच्चों, एक्सपैंड करती है जब ये गीली हो जाती है, वेट हो जाती है। एंड बिकम डिफिकल्ट टू प्लाउ, उसमें हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम वेरी हार्ड टू प्लाउ द फील्ड एंड ड्यूरिंग द ड्राई, लेकिन जब ड्राई सीजन होता है तो ब्लैक सॉइल श्रिंक, तो ब्लैक सॉइल सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है एंड डेवलप्स बिग क्रैक्स, तब इसमें बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। नाउ यू सी द स्टेट्स वेयर द सॉइल इज फाउंड, नंबर 1 महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इट मीन्स यू कैन से डेक्कन प्लेट्यू, थ्रू मैप यू हैव रेड। नाउ यू सी अबाउट रेड सॉइल, red soil. It is red in color as it contains a larger amount of iron oxide, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए इसका जो कलर होता है वह रेड होता है। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग, एक लंबे समय तक वेदरिंग जब होता है तो उसी से इसका कलर रेड हो जाता है। बाय रेनफॉल ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक पर जब लंबे समय तक वेदरिंग की क्रिया होती है तो तब जाकर के रेड सॉइल बनती है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम येलो टू ब्राउन, इसके कलर अलग अलग भी होते हैं, कहीं पर येलो हो जाता है, कहीं पर ब्राउन हो जाता है, ड्यू टू हाइड्रेशन। बच्चों हाइड्रेशन होता है चूँकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है और जब एयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन है उससे जब इसका संपर्क होता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और उसी ऑक्सीडेशन के कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। नाउ यू सी कैरेक्टर्स, व्हाट इज कैरेक्टर्स ऑफ रेड सॉइल? नंबर 1 इट इज हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है। इट्स ए पुअर इन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन में पुअर होता है, फास्फोरस में पुअर होता है, पोटेशियम और ऑर्गेनिक मैटर में भी पुअर होता है, इसलिए बच्चों यह कम उपजाऊ होती है, यह ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। इट इज आइडल फॉर ड्राई फार्मिंग, यह ड्राई फार्मिंग के लिए आइडल होती है, इस चीज़ को आप देखें ड्राई फार्मिंग के लिए आइडल होती है। एज इट इज फॉर्म्ड इन ए पुअर रेनफॉल एरिया, इसीलिए जहाँ पुअर रेनफॉल एरिया होता है वहीं पर ड्राई फार्मिंग के माध्यम से कुछ खेती कर ली जाती है। इट इज लूज एंड एरेटेड, यह लूज होती है, ये इसमें हवा भी
प्रवेश करता है, इट नीड्स इरिगेशन सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन। अगर इस सॉइल में आपको कल्टीवेशन करना है तो इरिगेशन सपोर्ट की आवश्यकता होती है। नाउ यू सी स्टेट्स वेयर इट इज फाउंड, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, these states are major states for the soil and crops. Rice, ragi, tobacco, groundnut, potatoes are produced in this soil. And in the India, you see laterite soil. Laterite soil is formed by weathering of rocks under a condition of high rainfall. यानी इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए एंड हाई टेम्परेचर चाहिए विथ अल्टरनेट, यानी कभी हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल अल्टरनेट एंड वेट एंड ड्राई, ये सीजन चाहिए, ये पीरियड चाहिए, तब जाकर के सॉइल बनती है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग। ये सॉइल लीचिंग से बनती है ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स। बच्चों मैं बता दूं इसके बारे में, ये सॉइल वहीं पाई जाती है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल भी होता है तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वह पानी के साथ कटकर बह जाती है, और जो बची हुई सॉइल होती है उसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल, जो अनफर्टाइल होती है। इसलिए आप इसके बारे में जान लें, यह अनफर्टाइल सॉइल है और इसीलिए इसको कहते हैं लीचिंग, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल होती है वह पानी के साथ घुल करके बह जाती है, मूव फ्रॉम द प्लेस, सो इट इज कॉल्ड लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स। नाउ यू सी करेक्टर्स। व्हाट इज करेक्टर्स ऑफ इट? नंबर 1, आयरन ऑक्साइड इज फाउंड इन लेटराइट सॉइल। एक पॉइंट आपको यह मिला। सेकंड पॉइंट है द कलर ऑफ लेटराइट सॉइल इज रेड। इनका भी कलर रेड होता है। एंड आफ्टर अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए ये कैसे बनती है। आफ्टर अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आयरन चेंजेज इट्स कलर। एक्चुअली इसमें आयरन ऑक्साइड होता है और जब इनका संपर्क एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से होता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और जिससे इनका कलर चेंज हो जाता है। द फॉर्म ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ब्रिक्स। इस तरह की सॉइल को ब्रिक्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ईंट, हिंदी में ईंट कहते हैं बच्चों। तो इस तरह की सॉइल को ब्रिक्स कहा जाता है, ईंट कहा जाता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग पर्पजेज। इससे घर का निर्माण का कार्य होता है। नाउ यू सी स्टेट्स वेयर दिस फाउंड, देन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, Andhra Pradesh, Maharashtra, as you have seen in map, and crops which are grown here: ragi, sugarcane, rice, tea, rubber, and coffee. And at last you see soil erosion. What is soil erosion? देखिए, the removal of the top soil. जो टॉप सॉइल होती है जब वो रिमूव हो जाती है अपनी जगह से, कैसे? बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। वंस अगेन यू सी, बिकॉज इट वाज कवर्ड, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय वाटर, विंड एंड ह्यूमन। जब सॉइल अपनी जगह से वाटर के माध्यम से या विंड के माध्यम से या ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से रिमूव हो जाती है तो उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। तो इसी के साथ आपका लेसन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।